بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات 21 تا 30 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ ہے سورہ انعام کی صورت ہے، آیت نمبر 21 تا 30۔ آیت نمبر 21، وَمَن اور کون ہے، ازلم بڑا ظالم، من سے، من جو، اس شخص سے جو افطرا کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹ بولنا، بہت بڑا جھوٹ باندھنا، بہت بڑی گپ چھوڑنا۔ افطرا جس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، جس نے افطرا کیا، اللہ پر، کاذبن جھوٹ۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، جس نے اللہ پر جھوٹا افطرا کیا۔ کیا افطرا کیا؟ او یا کذبا جھٹلایا، بے آیاتہ اس کی آیات کو، جمع ہے یہ اس کی آیات کو، بے شک وہ لا نہیں، یفلح فلاح دی جائے گی، فائدہ دیا جائے گا، ظالموں کو۔ یا اس نے یعنی وہ شخص، اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر افترا کیا، جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا، یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، انہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، یعنی اللہ پر جھوٹا افطرا کرنا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کی آیات کو جھٹلانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظالم لوگوں کو اللہ کبھی بھی فائدہ یا فلاح نہیں دیں گے۔ وہ لوگ فائدے میں کبھی نہیں رہیں گے، وہ نقصان میں ہی رہتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 22، اور یوما دن، اور جس دن، نحشرہم، یہ نون جو ہے نشانی ہے ہم کی، نحشرہم ہم جمع کریں گے، حشر جمع کرنا، میدان حشر وہ میدان جہاں سب کو جمع کیا جائے گا۔ نحشرہم، ہم او کی جمع ہے، ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، جمیعاً سب کو، ہم سب کو جمع کریں گے، ثم پھر، نقولو ہم کہیں گے، نون نشانی ہے ہم کی، نقولو ہم کہیں گے، للذین لی کے لیے، الذین لوگ، ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ان سے ہم کہیں گے، ہم سب کو جمع کریں گے حشر میں، اور پھر ان سے پوچھیں گے، انہوں نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان سے پوچھیں گے، اینا کہاں ہیں، کہاں ہیں، شرکاؤکم شرکا شریک، کم تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، الذین جن کو، کنتم تھے تم سب، تزعمون دعویٰ کرتے تھے، جنہیں تم کیا کرتے تھے تم سب، جن پر بڑا تمہیں زہم تھا، جن پر تمہیں بڑا بھروسہ تھا، جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا، لے آؤ ذرا آج ان کو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے، کہاں ہیں تمہارے شرکا جن پر تمہیں بڑا زہم تھا، جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، جن پر تمہیں بڑا بھروسہ تھا، آج کہاں ہیں وہ، لے آؤ ذرا ان کو۔ ظاہر ہے کہ وہ نہیں لا سکیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے، پہلے کہا گیا ہے کہ اللہ پر گویا ایک بہت بڑا جھوٹ افطرا کیا ہے، اس کی آیتوں کو جھٹلایا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی تم نے شریک ٹھہرایا، تو ذرا آج لے آؤ ان کو، دیکھو ذرا آج وقت ہے، ذرا لاؤ ان کو، دنیا میں تو تمہارا ان کے اوپر بڑا بھروسہ تھا، ہر بات انہی سے کہتے تھے، ہر التجا انہی سے کرتے تھے، انہی سے مدد مانگتے تھے، انہی کو جو ہے پکارتے تھے، آج ذرا ان کو
ले आओ, तो ज़ाहिर है वो नहीं ला सकेंगे, फिर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। आयत नंबर 23, सुम्मा फिर, ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लम हरगिज़ नहीं, तकुन होगा, फितनतुहुम, फितना कहते हैं आजमाइश को, फरेब को, उज़र को, बहाने को, हुम, हु की जमा है हुम, फितनतुहुम यानी उनका उज़र, उनका बहाना, उनका फरेब, जिस दुनिया में जिस फरेब में लगे रहे हैं वो नहीं होगा उन्हें उसका कोई फ़ायदा। वल्लाही, वाह कहते हैं कसम के लिए इस्तेमाल होता है, वल्लाही कसम है अल्लाह की, जैसे वल्लस्र कसम है ज़माने की, वत्तीन कसम है तीन की, वज़ैतून और जैतून की, तो वाह अरबी में कसम के लिए इस्तेमाल होता है। वल्लाही कसम है अल्लाह की, रब्बिना हमारा रब, रब ना हमारा, हमारा रब, मा नहीं, कुन्ना थे हम, मुशरिकीन, मुशरिकीन हम मुशरिकीन नहीं थे, यानी तू ही हमारा रब है, कसम है अल्लाह ही, अल्लाह तू ही हमारा रब था, हम तो शिरक नहीं करते थे, यानी वो झूठ बोलेंगे कि नहीं हम तो नहीं शिरक करते थे, हम तो शरीक नहीं ठहराते थे। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, लेकिन उनका वो जो बहाना है, वो जो उज़र है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन कालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, फिर उनके पास कोई उज़र, कोई बहाना नहीं होगा सिवाय इसके कि वो ये कहें कि अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, यानी अल्लाह तू ही हमारा रब है, हम शिरक करने वाले न थे। आयत नंबर 24, उनजुर देखो, लुक एट देम, कैफा कैसा, कज़बू झूठ बोला, यानी ये जो कह रहे हैं हम तो शरीक नहीं करते थे, हम तो शिरक नहीं करते थे, हम तो अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराते थे, देखो कितना बड़ा उन्होंने झूठ बोला है, कैसा झूठ ये बोल रहे हैं, अल्लाह पर, अनफुसिहिम अपनी जानों पर, कैसे वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने कैसे वो अपनी जानों पर झूठ बोल रहे हैं कि शिरक करते थे और अब कहते हैं कि हमने शिरक नहीं किया। वज़ल्ला और गुमराह किया, ज़ल्ला जालिन गुमराह, ज़ल्ला गुमराह हुए, अनहुम उससे, मा जो कानू थे, यफ्तरून इफ्तरा करते थे, यानी वो जो इफ्तरा करते थे उससे वो गुमराह हो गए, यानी उससे वो मुकर गए। देखो कैसा झूठ बोल रहे हैं कि वो शिरक तो करते थे, वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, लेकिन अब मुकर गए हैं। देखो कितना बड़ा उन्होंने इफ्तरा किया है, कितना बड़ा उन्होंने ये झूठ बांधा है। उनज़र कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, देखो उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला और उनसे गुम हो जाएगा जो वो झूठ बांधा करते थे, यानी उनका ये बहाना नहीं चलेगा। आयत नंबर 25, व मिनहुम व और मिन हुम उनसे, उनमें से मन जो यस्तामेओ, ये समात है, कान लगाकर सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, कानाफूसी करते हैं, यानी कान लगाकर सुनते हैं कि कोई हमें बात मिल जाए, अलैका तेरी तरफ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते थे, इसलिए नहीं सुनते थे कि उन पर अमल करें, बल्कि इसलिए सुनते थे कि उनमें से हम कोई निकालें, कोई ऐसी चीज़ जिस पे एतराज़ कर सकें। वजअलना और बनाया हमने, अला पर, कुलूबिहिम दिलों पर, उनके दिलों पर बनाया, उनके दिलों पर हमने बनाया, अकिन्ना पर्दा, हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दा बना दिया है, ग़िलाफ़ बना दिया है, कवर चढ़ा दिया है, अन के यानी नहीं, यफ़क़हू वो समझ सकें, यफ़क़हू समझ सकें उसको, उसको हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दा चढ़ा दिया है, हमने उनके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया है कि वो न समझ सकें। वफ़ी और मैं, आज़ानिहिम आज़ान कानों को कहते हैं, आज़ानिहिम उनके कानों पर, वक्रिन बोझ है, वो जो एयर प्लग होते हैं, जो कानों में वो प्लग डाल देते हैं, यानी ताकि
सुनने न पाए, उनके कानों में बोझ है, यानी उनके जो कान है वो उनके अंदर लगी हुई है, वो सुनने के काबिल नहीं है। व इन, और अगर, यराऊ, देखो, और अगर देखो या देखें उनको, वो यराऊ ज़्यादा जमा के लिए है, कुल्ला, सारे के सारे, तमाम, आयतिन, आयात, निशानियाँ, अगर तमाम निशानियाँ देखें, ला, नहीं, युमिनू, ईमान लाते, वो सारी निशानी देख भी लेंगे फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे, बिहा, इसके सबब। क्यों? क्योंकि उनके दिलों पे अल्लाह ने ग़िलाफ़ चढ़ा दिया है, उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है, उनके कान जो हैं उनकी प्लगिंग हुई हुई है, उनके कान बंद कर दिए गए हैं, तो वो निशानियां देख कर भी मुकर जाते हैं, वो ईमान नहीं लाते। सामने नज़र आ रहा होता है एक चीज़ जो है वाज़ेह है, लेकिन नहीं ईमान लाएंगे वो, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब, जाऊ का, आ जाएगा, का, तेरे पास आ जाएं, युजादिलून का, युजादिलून कहते हैं बहस मुबासा करना, खामखा की हुज्जतबाजी करना, बहस करते हैं, का, तुझसे, यकूलू, कहते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, इन, अगर, हाजा, ये, इल्ला, मगर, असातीर, पहले हम लफ्ज़ ये पढ़ चुके हैं, असातीर कहानियों को कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, अव्वलीन पहले, पहलों की, जमा है अव्वल की, अव्वलीन, कि ये कुरान जो है वो तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं, यानी वो आपके पास आते हैं और बहस करते हैं, हुज्जतबाजी करते हैं, जिन्होंने कुफर किया, और कहते हैं कि ये तो पुराने लोगों की, यानी ये कुरान जो है महज पुराने लोगों की कहानियाँ हैं। व मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़्रा व इन यरौ कुल्ल आयातिन ला युमिनू बिहा हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाए रहते हैं, और हमने उनके दिलों पर ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि मुमकिन नहीं है कि वो इस कुरान को समझें, और इनके कानों में बोझ है, और अगर वो तमाम निशानियां देख भी लें तब भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि वो जब आपके पास आते हैं तो आपसे बहस करते हैं, हुज्जत करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो लोग जिन्होंने कुफर किया कहते हैं कि ये कुरान तो पहले लोगों की कहानियां हैं। आयत नंबर 26, वहुम, और वो, वा और हुम, हु की जमा हुम, वो सब, यनहाउना, मना करते हैं, अनहु, उससे, व यनआउना, और दूर रहते हैं, वो मना भी करते हैं दूसरों को भी और ख़ुद भी दूर रहते हैं, अनहु, उससे, व इन, और अगर, यकीनन, युहलिकून, हलाक करते हैं, बहुत बड़े नुकसान को कहते हैं, अपने आप को हलाक करना, अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, किसको नुकसान पहुंचाते हैं, किसको हलाक करते हैं, अपनी जानों को, अनफुसहुम, वो किसी और का नुकसान नहीं करते, अपनी जानों का नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, वमा, और नहीं, यशउरून, और उन्हें शऊर भी नहीं है, यानी वो समझते भी नहीं है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें इसका शऊर भी नहीं है। वहुम यनहौना अनहु व यनऔना अनहु व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, और ये लोग दूसरों को कुरान से रोकते हैं और ख़ुद भी उससे दूर रहते हैं, और इससे यकीनन अपने आप ही को हलाक करते हैं। अपने आप को हलाक करना मतलब बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना, गोया कि खुदकशी करना, लेकिन इसका वो शऊर नहीं रखते, यानी अपना नुकसान कर रहे हैं और उसका शऊर भी नहीं रखते, उनके अंदर अक्ल है नहीं, क्योंकि उनके दिलों पे पर्दा पड़ा हुआ है और उनके कानों में वो बोझ रखा हुआ है, कान उनके बंद हुए हैं, तो ना वो सुनते हैं और ना वो समझते हैं, दिल से तो समझता है, ना उनके जज्बात हैं इससे मुतल्लिक, लिहाजा वो अपने आप को हलाक कर रहे हैं, अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। आयत नंबर 27, वलाओ, और अगर, तरा, तू देखे, इज, जब, वकिफू,
वक़िफ़ु खड़े किए जाएंगे, अला पर या सामने, नार नार आग, जब वो आग के सामने खड़े किए जाएंगे क़यामत के दिन, फ़क़ालू बस वो कहेंगे, या लैतना है काश, अलास हाय अफसोस, नुरद्दू हम लुटा दिए जाएं, रिटर्न यू टर्न, हमें अगर यू टर्न दे दिया जाए, हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। वा ला, वा और ला नहीं, नुकज़्ज़िब हम नहीं जुटलाएंगे, नून जो है हम की निशानी है, नुकज़्ज़िबा हम नहीं जुटलाएंगे, बे आयाती आयात को, रब्बिना अपने रब की, हम अपने रब की आयात को, अपने रब की निशानियों को नहीं जुटलाएंगे, व नकूना और हो जाएंगे, नकून नून जो है कूना हो जाना, ना जो है वो निशानी है हम की, व नकूना और हम हो जाएंगे, मिन से मोमिनीन मोमिन, हम बड़े ईमान वाले हो जाएंगे, हम तो बड़ा हम मोमिन हो जाएंगे। अगर हमें वापस कर दिया जाए, ज़मीन पे दुनिया में वापस भेज दिया जाए, तो हम शिरक नहीं करेंगे, हम अल्लाह की आयत को नहीं जुटलाएंगे, हम बड़े पक्के और सच्चे मोमिन बन जाएंगे। यानी एक चांस और मांगेंगे, लेकिन उनको ये चांस नहीं दिया जाएगा। वलाउ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मोमिनीन। और अगर तू देखे जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा, यानी आग के सामने खड़ा किया जाएगा, तो वो कहेंगे, आकाश अलास हम दुनिया में वापस भेज दिए जाएं, तो हम अपने रब की आयत को नहीं जुटलाएंगे और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। आयत नंबर 28, बल्कि बदा ज़ाहिर हो गया। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अब तो उनके सामने ज़ाहिर हो गया है, सामने जो है वो आग भड़क रही है, तो अब तो ज़ाहिर हो गया है कि भाई उनके जो मौक़िफ़ था, उनका जो नज़रिया था, वो जो शिरक करते थे वो गलत है। अब जब उनके सामने रिज़ल्ट आ गया, जब उनके सामने नतीजा आ गया, लहुम उनके लिए, माँ जो कानू थे, यख़फून छुपाते थे, खुफिया रखना, जो वो छुपाते थे, यानी जो उन्हें मालूम नहीं था, मिन से कबल इससे पहले, यानी जो चीज़ उन्हें इससे पहले मालूम नहीं थी और उनके लिए खुफिया थी, अब उनको उसके सामने ज़ाहिर हो गई है, तो ज़ाहिर है अब उन्होंने तो कहना है कि हमें चांस दे दें और हम वापस चले जाएं, तो हम पक्के ईमान वाले हो जाएंगे। वलाओ और अगर, रुद्दू रुद्दू लौटा दिया जाए, अगर उनको लौटा भी दिया जाए, ला आदू उनको वापस कर भी दिया जाए, तो अल्लाह को मालूम है, ला आदू यकीनन, ला का यकीनन के लिए होता है, आदू फिर करने लगेंगे, लिमा उससे जो, नहू वो उनको मना किया गया था, जिस चीज़ से उन्हें मना किया गया था वो फिर वैसा ही करेंगे, अनहु जिससे, व इन्नहुम और बेशक वो, लकाज़िबून वो झूठे हैं, यानी अगर उनको वापस भेज भी दिया जाए दुनिया में, तो वही कुछ करेंगे जो इन्होंने पहले किया था, फिर शिरक करेंगे, फिर अल्लाह की बगावत करेंगे, फिर अल्लाह की आयत को झुटलाएंगे। अल्लाह को ज़्यादा बेहतर मालूम है, बल बदा लहुम मा कानू युख्फूना मिन कब्ल वला रुद्दू लआदू लिमा नहू अनहु व इन्नहुम लकाज़िबून, बल्कि उनके लिए वो ज़ाहिर हो गया। अब वो क्यों इस पे कह रहे हैं कि हमें वापस भेज दिया जाए, जब नतीजा आ जाता है तो आमतौर पे हम कहते हैं कि हमें दोबारा चांस दे दें, हम अब तो मेहनत करेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला के सामने जब वो दोज़ख उनको सामने नज़र आएगी और ज़ाहिर हो जाएगा उन पे कि हम जो कुछ करते रहे वो गलत था, तो फिर वो जब उन पे ज़ाहिर हो गया, तो फिर वो कहेंगे कि हमें वापस भेज दिया जाए, हम तो अब जो है वो पक्के सच्चे मोमिन बन जाएंगे और हम नहीं झुटलाएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, अगर उनको वापस भेज भी दिया जाए, तो फिर भी वो वैसा ही करेंगे जैसे वो पहले उन्होंने किया था, बल्कि उनके लिए वो ज़ाहिर हो गया जिसे वो छुपाते थे। और अगर उन्हें दुनिया में वापस भेज भी दिया जाए, तो यकीनन फिर वही कुछ करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया था, और यकीनन वो झूठे हैं। आयत नंबर 29, वकालू वो कहते हैं, इन अगर या बेशक, हिया ये यही, इल्ला मगर, हयातुना हयात ज़िंदगी ना हमारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, हयातुना दुनिया दुनिया की ज़िंदगी है, यानी हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है,
वमा और और नमा नहीं, और नहीं नखनो हम बेमबऊसीन बेइज्जत करना, दोबारा उठाया जाना, और हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, यानी मरने के बाद हम दोबारा हमें जिंदा नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं कि ज़िंदगी तो बस सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है और कोई आखिरत नहीं है, हमें दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, बस दुनिया में ऐश कर लो, आखिरत कोई नहीं है। तो ये उनका नज़रिया है और ये नज़रिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह जो है वो यकीनन दोबारा हमें ज़िंदा उठाएंगे, हमारे ईमान का हिस्सा है और हम पूछे जाएंगे। लिहाजा ये वाली बात उनकी गलत है और इस पे उन्हें नुकसान होगा। वकालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, और वो कहते हैं बेशक हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद दोबारा हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे। ये गलत नजरिया है। आयत नंबर 30 है, वलाओ और अगर अरा तू देखे उनको, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप उनको देखें, इस जब वक़िफ़ु वो सामने किए जाएंगे, खड़े किए जाएंगे। पहले कहा था कि दोज़ख के सामने खड़े किए जाएंगे, आग के सामने खड़े किए जाएंगे, अब कहा जा रहा है अला पर रब्बिहिम उनके रब। आप अगर उनको देखें जब वो अपने रब या उनके रब के सामने उन्हें खड़ा किया जाएगा, काला तो वो अल्लाह जो है वो उनसे कहेगा आ लैसा आ क्या, लैसा नहीं, क्या नहीं, हाजा ये, हाजा का मतलब ये है, क्या ये बिल हक, हक के साथ, कि ये जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है क्या ये हक नहीं है, क्या ये सच नहीं है। कालू वो कहते हैं, वो कहेंगे बला क्यों नहीं, यानी यकीनन क्यों नहीं, ये तो बड़ा सच है, बड़ा हक है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। व रब्बिना और वाह कसम, रब्बिना हमारे रब, और है हमारे रब, कसम है आपकी, काला कहा उसने, ये अल्लाह ने कहा, फजूकू फा पस जूकू चखो, पस चखो, जायका उर्दू का लफ्ज है, फजूकू पस चखो, किसे चखो, अलाजाब अजाब को, बिमा इसके सबब, कुन तुम करते थे, तकफुरून कुफर तुम कुफर करते थे। अब तुम्हारा ये मान लेना, अब तुम्हारा ये कहना कि ये हक है, सच है, जिसका कोई फायदा नहीं है, अब चखो अजाब से उसके सबब के तुम कुफर करते थे, तुम इनकार करते थे, अब तो मान रहे हो कि यह हक है, लेकिन अब इस मानने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने आ चुका है। वलाउ तरा इज वकिफू अला रब्बिहिम काला अलैस हाजा बिलहक कालू बला व रब्बिना काला फजूकुल अजाबा बिमा कुंतुम तकफुरून, और अगर आप उस वक्त देखें जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह उनसे फरमाएगा कि आप मरने के बाद दोबारा जिंदा होना हक नहीं है। वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम कि ये बिल्कुल सच है। अल्लाह फरमाएंगे तो फिर चखो अजाब का मज़ा इसके बदले में जो तुम कुफर किया करते थे। तो ये थी आयत 21-30। हमने इसका लफ्ज़ी तर्जमा भी किया और हमने इसको समझने की कोशिश भी की है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें कुरान समझने की सलाहियत भी दे और हमारे अंदर वो जज्बा भी पैदा करे। ये सबक आपके लिए तैयार किए गए हैं, ये तलबा की सतह को सामने रख के तैयार किए गए हैं। कोशिश की गई है कि इनको इंतहाई आसान कर दिया जाए। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।